Welcome to Acme Classes Simply Economics, a one-stop channel wherein all your doubts and queries relating to class 11th and 12th economics shall be resolved in the most simplistic manner. This is a 7-part series dealing with money and banking, excess and deficient demand, monetary policy, fiscal policy, and so on and so forth. This is video number 6 of the 7-part series dealing with fiscal policy. If you've not seen the videos prior to this one, I seriously suggest that you do so, otherwise the context of this video will not be understood. So, let's see, how does the government deal with the situation of excess and deficient demand? In the prior videos, we've seen how through the monetary policy, how the banking system deals with the problem of excess and deficient demand, namely the Central Bank or Reserve Bank of India in our case. So, fiscal policy objectives are like any other objectives of the monetary policy, is to control excess demand, and when excess demand happens, I'll not be explaining the entire process again because that has been explained in great detail in the previous videos. Kindly, like I suggested before, have a look at those videos prior to looking at this one. So, in case of inflationary tendencies, the objective of any policy, whether fiscal or monetary, is to reduce the money supply in the hands of the people. So, and in case of deflationary tendencies or deflationary gap existing in the economy, the objective is to correct the deflationary gap by increasing the money supply in the hands of the people, thereby promoting aggregate demand, so on and so forth. Now, government has basically two types of fiscal policies: expansionary policies and contractionary policies. Contraction means to contain or control. Expansionary means to expand. So, contractionary policy is undertaken in case of excess demand situation or inflationary gap situation, whereby you need to slow down the economic growth because of high inflation tendencies. Expansionary is to expand the economic growth, and this is required in case of deflationary gap situation or in case of deficient demand. So, expansionary fiscal policy is required to control the situation of deficient demand, and contractionary fiscal policy is required to control the situation of excess demand. The government has two main tools through which it can control the fiscal policy. Two main tools through which it can use to either expand the economy or contract the economy, and those tools are revenues and expenditures. So, अब लोगों के हाथ में अगर इन्फ्लेशन है तो मनी सप्लाई कम करनी है, ये हम पहले भी वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। मनी सप्लाई कम कैसे कर सकते हैं? या तो गवर्नमेंट अपना रिसीट्स बढ़ा दें, इन अदर वर्ड्स टैक्सेस बढ़ा दें, और सब्सिडीज कम कर दें। इन दोनों सिनेरियोस के अंदर जब टैक्सेस इंक्रीज हो जाएंगे तो लोगों के हाथ से पैसा निकल जाएगा और गवर्नमेंट के पास चले जाएगा। और सब्सिडीज अगर गवर्नमेंट कम कर दे तो फ्री के जो पैसे या फ्री की सर्विसेज जो गवर्नमेंट की तरफ से मिलती है लोगों को, फॉर एग्जाम्पल सब्सिडीज ऑन ऑयल, सब्सिडीज ऑन LPG, जो सस्ती चीजें हैं महंगी हो जाएंगी। एज अ रिजल्ट महंगी होने से आपकी जो डिमांड है वो कम हो जाएगी। सो आइदर इंक्रीज रिसीट्स बाय इंक्रीजिंग टैक्सेस और रिड्यूस एक्सपेंडिचर बाय रिड्यूसिंग सब्सिडीज। इन बोथ द सिनेरियोज, इन दोनों सिचुएशंस में लोगों के हाथ में पैसे कम हो जाएंगे। लोगों के हाथ में पैसे कम होने से डिमांड गिर जाएगी। डिमांड गिरने से इन्फ्लेशन का सिचुएशन कंट्रोल हो जाएगा। और अगर डेफिशिएंट डिमांड है, डेफिशिएंट डिमांड मतलब पैसे की प्राइसेस गिर रही हैं, डिफ्लेशनरी गैप एग्जिस्ट करता है, तो उस सिनेरियो में हमें डिमांड को बढ़ाना है। अब डिमांड को बढ़ाने के लिए मनी सप्लाई लोगों के हाथ में बढ़ानी पड़ेगी। अब लोगों के हाथ में मनी सप्लाई एंड डिस्पोजेबल इनकम ज्यादा कैसे कर सकते हैं? दो तरीके हैं। गवर्नमेंट अपना रिसीट्स कम कर दें, इन अदर वर्ड्स टैक्सेस रिड्यूस कर दें, और सब्सिडीज बढ़ा दें, इन अदर वर्ड्स एक्सपेंडिचर इंक्रीज कर दें। इन बोथ द सिनेरियोस लोगों के हाथ में मनी सप्लाई बढ़ जाएगी। जब गवर्नमेंट टैक्सेस कम कर देगी तो लोगों के हाथ से कम पैसे निकलकर गवर्नमेंट के पास जाएंगे और लोगों के हाथ में डिस्पोजेबल इनकम जो वो खर्च कर सकते हैं वो बढ़ जाएगी, जिससे डिमांड बढ़ेगी। डिमांड बढ़ने से प्राइसेस बढ़ेंगी, प्राइसेस बढ़ने से प्रॉफिट्स बढ़ेंगे और डिफ्लेशनरी गैप वाला सिचुएशन कंट्रोल हो जाएगा। डेफिशिएंट डिमांड एक्सेस डिमांड की तरफ चल पड़ेगी, नॉर्मलाइज हो जाएगा सिचुएशन। सिमिलरली सब्सिडीज देने से, फॉर एग्जांपल कोविड-19 के सिचुएशन के अंदर क्या हुआ है, लोगों का टेंडेंसी टू स्पेंड कम हो गया है, तो गवर्नमेंट ने बैंक अकाउंट के अंदर थ्रू जनधन अकाउंट्स क्या किए, मनी डायरेक्टली ट्रांसफर किया इन द हैंड टू द पीपल, ताकि लोगों का खर्चा कर सकें। लोग अगर खर्चा करेंगे तो इकोनॉमी स्टिमुलेट होगी, तो डिमांड बढ़ेगी तो ग्रोथ होगी, अदरवाइज ग्रोथ नहीं होगी और हम रिसेशन और डिप्रेशन में फंस जाएंगे।
So, to summarize, fiscal policy is the policy undertaken by the government at the disposal of the government. और ये फिस्कल पॉलिसी के टूल्स क्या है गवर्नमेंट के पास? बाय कंट्रोलिंग इट्स रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर। रिसीट्स का सिंपलेस्ट एग्जांपल है टैक्सेस, एक्सपेंडिचर का सिंपलेस्ट एग्जांपल है सब्सिडीज। However, it is much more complex than that, but this is to explain the concept in the most simplest of forms and terms. So, to again recapitulate, जब इन्फ्लेशन होगी तो लोगों के हाथ में पैसे कम करने हैं, लोगों के हाथ में पैसे कम करने हैं तो या तो टैक्सेस बढ़ाएंगे या सब्सिडीज कम करेंगे। और अगर डिफ्लेशनरी टेंडेंसीज चल रही हैं तो लोगों के हाथ में पैसे बढ़ाना है। बढ़ाना कैसे है? या सब्सिडीज इंक्रीज करके या टैक्सेस डिक्रीज करके। इन दोनों वेज में गवर्नमेंट सिचुएशन ऑफ एक्सेस और डेफिशिएंट डिमांड कंट्रोल कर पाएगी। तो ये आपका जो समरी है जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया है। एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी डेफिशिएंट डिमांड के कॉन्टेक्स्ट में यूज होती है, जहां पे टैक्सेस कम करने हैं, गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ानी है। गवर्नमेंट स्पेंडिंग सिर्फ सब्सिडीज के थ्रू नहीं होती, गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा लगाएगी, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगी, उसके थ्रू भी आप अपना डिस्पोजेबल इनकम या मनी सप्लाई लोगों के हाथ में बढ़ा सकते हैं। और कंट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी इन्फ्लेशन के टाइम में यूज होगी, जहां पे गवर्नमेंट स्पेंडिंग कम हो जाएगी और टैक्सेस बढ़ जाएंगे। So these are the two ways in which through which government can control the situation of excess or deficient demand. So you can again go through the summary of it. अब fiscal policy और monetary policy के बीच में difference क्या है? To recapitulate, to basically bring to conclusion the entire series of videos. Fiscal policy government सेट करती है, monetary policy central bank सेट करता है। फिस्कल पॉलिसी में गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और रिसीट्स के ऊपर थ्रू चेंज आता है, मॉनेटरी पॉलिसी में इंटरेस्ट रेट्स के थ्रू चेंज आता है। गवर्नमेंट का रेंज ऑफ ऑब्जेक्टिव ज्यादा होता है, मॉनेटरी पॉलिसी में ऑब्जेक्टिव्स थोड़ा नैरो होता है। और गवर्नमेंट फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट बजट को अफेक्ट करती है, मॉनेटरी पॉलिसी कॉस्ट ऑफ बोरोइंग को अफेक्ट करती है। कॉस्ट ऑफ बोरोइंग मतलब इंटरेस्ट इज द कॉस्ट ऑफ बोरोइंग। तो टी टूल्स क्या है? टैक्सेस एंड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। इसमें टूल्स क्या है? रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, और इन अदर वर्ड्स क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रेट कंट्रोल्स। अगर आपने नहीं देखा ये वीडियो तो प्लीज देखिए, ये वीडियो नंबर 2, 3 एंड 5 में कवर हो जाता है। So with this we come to the end of video number 6 dealing with fiscal policy. Video number 7 deals with credit creation by the banking system. And in the end, I would like to say that if you do like what we have to share, please do like, subscribe, share, comment, and press the bell icon. Thank you. Have a nice day and good luck.